वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिलके एक दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए, एक पपेट डिप्टी सीएम से बेटर है कि एक फुल फ्लेज सीएम मिल जाए। ठीक है, तो अब उनको मुख्यमंत्री मांगता है। मुख्यमंत्री मांगता है, डिप्टी सीएम तो क्या है। सिद्धू साहब सिर्फ एक चीज चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना। जब किसी के सिर पर पड़ जाए ना, वो अपने आप निभा लेता। जैसे चन्नी साहब के पे पड़ गई। चन्नी साहब ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो हमारी चुनाव यात्रा पंजाब के दौरे पर निकली है और इस वक्त मैं अमृतसर में हूं, अमृतसर ईस्ट सीट पर। और यहां से कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू विधायक हैं। उनसे पहले उनकी पत्नी यहां से विधायक थी बीजेपी की ओर से। लेकिन इस बार यहां क्या माहौल है, यहां की जनता क्या सोचती है, वो हम जानने के लिए आए हैं। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहां जो एक पार्क में बैठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस बार किसका माहौल है और कौन सरकार बनाने वाला है। साहब, क्या नाम है आपका? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ एनजीओ ਜਿਹੜੀ ਆ तकरीबन 3 साल तो काम कर रही है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन ये यहाँ पर सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की भी रही होगी, प्रशासन की भी रही होगी, उनका कैसा रवैया है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ तकरीबन 4 साल ਤੋਂ ਅਸੀਂ एनजीओ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। आपको तो प्रशासन की समझ भी है, कैसे काम निकलवाना है। आम जनता की बात करें तो कांग्रेस की सरकार से चरणजीत सिंह चन्नी अभी आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर कैसी समझ है आप लोगों की? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਐਮਐਲਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਸਐਚਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੋਲ ਆ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। लोगों को मतलब ऐसे ही भ्रम में डाला हुआ है, कंफ्यूज किया हुआ है, आपस में अपना बदला लेने का पॉलिटिक्स चल रही है। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਗਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ। आपके सिद्धू साहब
मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, बहुत बार बार बोल रहे हैं, ये तो डरा भी रहे हैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ? बच्चा बड़ा नहीं हो गया, बड़ा नहीं हो गया बच्चा। ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਉਹ 75-25 ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਢੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक कह रहे हैं साहब, ये ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 110-11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਐਡ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਐਡ ਕੱਢੀ, 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। वो तो सेंटर अपॉइंट करता है ना, एजेंट सेंटर, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। स्टेट के काम में ऐसे ही बोलेगा। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਯੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ तो बिल भी पास हो गया। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾ ਤੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ मतलब सपोर्ट करना। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने नारा दिया था कि हर घर में बिल्कुल ठीक है। एक सरकारी नौकरी देंगे, तो कांग्रेस तो 5 साल में नहीं दे पाई ना। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। 4 हफ्ते में पूरा खत्म। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ। तो आप जो हैं, रूसा आलम ने कुछ कर नहीं देता। तो आप जो हैं मतलब कांग्रेस ने जो काम सरकार में हुआ या नहीं हुआ उसको ना देखते हुए आप चन्नी साहब को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चन्नी इज द बेस्ट फेस एज ए सीएम। इस करके चन्नी साहब ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਸਪੋਰਟ।
मतलब उस एमएलए ਨੂੰ मतलब कांग्रेस जो है गलत आदमी को पाल रही थी इतने दिन से। ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ कैप्टन अमरिंदर को क्यों सीएम बनाया? ਕੈਪਟਨ ਗਲਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ कि चन्नी साहब आउन जल्दी जल्दी साढ़े सीएम बन। आपका भरोसा चन्नी साहब के ऊपर है। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी, जो कह रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस के जो सरकार में कामकाज नहीं हुआ उससे नाराजगी है, लेकिन चन्नी पर भरोसा है। आपका भरोसा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है जी। क्या 111 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है और वो आगे भी कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो नेचुरली जब आएंगे तो जो पिछले 111 दिन में जो किया है उसकी रेपिटेशन में और भी काम करेंगे तो नेचुरली लोगों का भरोसा तो बढ़ेगा ही। ये तो सीधी बात है। और मेरे ख्याल से तो जितना कांग्रेस गवर्नमेंट कर सकती है और कोई गवर्नमेंट करती नहीं है। अब सिद्धू साहब के बारे में एक बात कहूँ तो सिद्धू साहब सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना। वो कुछ और नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं सिस्टम को सुधारना, जो सबसे मेन काम और सबसे मुश्किल काम है। सिद्धू साहब उसको सुधारना चाहते हैं और कांग्रेस नहीं चाहती। सिद्धू सुधारना चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन चाहती तो बात कहाँ मानी उनकी? ऐसा है ना, उस हमारे सब जगह सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ टांगे खींचने वाले भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम सुधरना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा चलना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिद्धू ठीक है, लेकिन चन्नी साहब जो है उन्होंने 111 दिन में करके दिखाया, वो शायद सिद्धू साहब भी ना कर सकते। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री पद का भी दूसरी बार उम्मीदवार घोषित किया राहुल गांधी ने, तो उस समय चेहरा मुरझाया हुआ था आपके। सिद्धू साहब का खुश नहीं लग रहे थे। बात वही है ना, वो अब हर कोई चाहता है कि मैं बनूं, मैं आगे आऊं, लेकिन ये पहले ये सोचना चाहिए कि मैं आगे आऊंगा तो क्या मेरे को सबका साथ मिलेगा, और अगर सबका साथ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो आदमी। तो कहीं नुकसान तो नहीं कर देंगे अंदर अंदर? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अरे नहीं, बीजेपी वाले जो हैं वो महा झूठे हैं। उनकी बात छोड़िए आप। उनको पंजाब में क्या मिलेगा? अमृतसर में उनको कौन सी सीट मिलने वाली है? कोई सीट नहीं मिलेगी। और पंजाब में उनको बहुत कम सीटें मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में उनका वजूद एक तरह से खत्म हो चुका है उनका। खत्म हो चुका। हाँ, तो लेकिन उनके वजूद के साथ में जो पार्टी थी अकाली दल, अभी बीएसपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया किसान मुद्दे पर, तो उनके बारे में क्या माहौल है यहाँ पर? अब देखिए, बात यह है कि माहौल की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि नशा बहुत बढ़ रहा है अभी और बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ थोड़ा झुकाव है कुछ लोगों का। लेकिन जो कांग्रेस करेगी वो सही करेगी बिल्कुल। हाँ, तो साहब कह रहे हैं कांग्रेस जो करेगी वो ठीक करेगी। आम आदमी पार्टी भी है। मैं दिल्ली से आया, सुबह ट्रेन में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल साहब बड़ा अच्छा काम करें, पंजाब में भी करेंगे। जरूर करेंगे जी। कैसा ख्याल है आपका? ख्याल बहुत अच्छा है जी, जरूर करेंगे। पंजाब को एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। यहाँ की जो पार्टियां हैं वो नहीं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरी? सबको देख लिया। यहाँ देखो हमारा काउंसलर है वह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कोई शक नहीं, बहुत काम किया। लेकिन साढ़े इतने एमएलए साहब मियाँ बीबी दोनों दसा रहे आ, कभी उन्होंने विजिट नहीं की थी, कभी कोई फंक्शन च किसी दिन आया, कोई इनवाइट भी करे नहीं आना। जिदा धार्मिक फंक्शन हो जाए कोई, उन्होंने काम पै जाता वा। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के जो सीएम उम्मीदवार हैं भगवंत मान, उनको अगर देखेंगे तो उनका पीछे का इतिहास देखेंगे तो थोड़े गंभीर पर्सनैलिटी नहीं रही है, सीरियस पर्सनैलिटी नहीं रहे हैं। कॉमेडियन कलाकार थे, उनका सम्मान है। जिम्मेदारी पै जाएगी, आपकी सिंसियर हो जाएगी, जिम्मेदारी आएगी तो सिंसियर हो जाएगी आप पे। लेकिन आप देखिए उनका मुकाबला किससे है, वो चन्नी साहब से मुकाबला बता रहे हैं, तो दोनों का मुकाबला फिर टफ हो जाएगा मामला। नहीं, कोई टफ नहीं होएगा जी।
जब किसी के सिर पर पड़ जाए ना वो अपने आप निभा लेता। जैसे चन्नी साहब के पे पड़ेगी, चन्नी साहब ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ पड़ गई क्योंकि उनको तो सीएम बनाया नहीं था पहले। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਜਾਖੜ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਟਾਂਗ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਤੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। 36000 ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 36000 ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। दिल्ली में भी जो केजरीवाल जी है ना, गवर्नर से एलजी से बड़े परेशान हैं, बहुत बार बार धरना देते थे, अभी तो धरना नहीं दे रहे। तो केजरीवाल साहब अच्छे क्यों लगते हैं आपको? ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 साल वो लुट रहे हैं, 15 साल वो लुट रहे, 30 आउटसाइडर हैं, दिल्ली से आए हैं, आपके अपने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। घर घर बच्चे पढ़े लिखे फिरते आ। कोई जाओ, मैं कहना किसी एमएलए को मिनिस्टर को चल जाओ, साइन कराने चल जाओ, वो साइन नहीं करेगा, वो साइन भी नहीं खुल के करेगा। पहले तो आधा घंटा बाहर बिठाई रखेगा, जे वारी आई है तो आ जा चंडीगढ़, आ जा चंडीगढ़ जाओ तो अंमृतसर आ जा, इदा करते आ। हर घर च बच्चा च पढ़े लिखे है, वो की करन, उम्र ओवरेज हो जाते आ, फिर नशे क्यों? बढ़ जाते हैं। नशे जाते। चलो कई माँ प्यो के पैसा नहीं, वो की करनगे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, आज काम चलाना ही बड़ा औखा वा। तो ऐसा लग रहा है सरकार बना पाएगी आम आदमी पार्टी? पिछली बार भी बहुत हल्ला हुआ था उनका, नए नए आए थे तो कह रहे थे अरे दिल्ली में बना के आए, अब यहाँ बनाएंगे। कोशिश हर कोई करता, कोशिश कर लिए भी करते आ कि आप 60-70 सीटां ले जानियां वा, कोशिश सारे करते पे आ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ नाम है कबीर जी? कमलजीत सिंह जी। कमलजीत सिंह जी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को मौका दे दीजिए, यहाँ की जो पार्टियां हैं वो बहुत उम्मीद उन्होंने पूरी नहीं करी है, आप देंगे मौका? नहीं देखो, मौका तो जो मैं समझता हूँ कि मौका तो उस पार्टी को उसी आदमी का था जो आप लोकल आदमी हो, लोकल होना जो चाहिए, आप आउटसाइड का नहीं, बाहर का दुख दर्द के भाईवाल हो ना, उसको मौका देना चाहिए। वो बेटर काम करेगा आपके लिए। अगर नहीं करेगा तो आपके पास ऑप्शन है, फिर उसको जैसे मर्जी आप बैठा के 10 लोग हैं 20 लोग हैं, वो कह सकते भैया आपने आप तो लोकल थे, आप क्यों नहीं कर रहे भाई? अब फिर दिल्ली केजरीवाल साहब से मिलने थोड़ा ही जाएंगे अगर कुछ बात होगी तो। जो बात तो ठीक है, नहीं जाए जाना चंडीगढ़ भी मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। पर जो लोकल आदमी होगा उससे हमें ये बेनिफिट रहेगा ना कि हम उसके पास उसको अप्रोच के इमीडिएट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है। अब मैं कुछ दूसरे सवाल जाति के हिसाब से लूंगा, क्योंकि पंजाब में आपके 32% के करीब दलित हैं और पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बन पाया, क्योंकि बसपा और अकाली दल ने गठबंधन किया। तो बहन जी की अभी रैली थी तो वो कह रही है कि हमारे दबाव की वजह से सिर्फ चेहरा दिखाया इन्होंने, चन्नी का एक दलित मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन असल में दलितों का कोई काम करने वाले नहीं है। नहीं, ये बात तो ये दलित शब्द वैसे बोलना भी ये अच्छा मैंने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने 1947 का देश आज़ाद हुआ होगा, अभी दलित वाली बात ही नहीं रही कुछ, ठीक है ना। ये लोगों तो एक जैसे पत्ता फेंकते ना, एक आदमी को बदनाम करने के लिए, एक आदमी उसको बना दिया तो उसको कंडेम कैसे किया जाए दलित करके, ठीक है ना। ये बात नहीं, वो एजुकेटेड पर्सन है, देखो उसने एमफिल कर अपने PhD कर रखी है, अभी कर रहा है, कोई इतना पढ़ा लिखा अपने पास चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, ठीक है ना। तो पहले क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? पहले देखो उसकी जैसे सीनियोरिटी की वारी आती है तभी ना, ऐसे भी सीनियर नहीं थे। अब वो कैप्टन साहब भी बने बैठे थे, उसको निकाला उन्होंने धक्के से, जैसे भी करके करा, तो अब खट से वो बीजेपी में जा घुसे, ठीक है ना। कोई पोस्ट, एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट तो एक ही होती है, एक आदमी ने बनना है ना, जो बन गया हो, जब तक उसको नहीं निकालें कि उसी सीट वेकेंट नहीं, दूसरा आदमी कैसे बिठाएंगे, ठीक है ना। वजह प्रॉपर एप्रोप्रिएट कैप्टन साहब जो हैं वो उनका एक तो वोट बैंक होगा, जनाधार कुछ तो होगा, वो नुकसान तो नहीं कर देंगे आप लोगों का? नहीं, उसने क्या नुकसान करना है, वो तो अभी अपना नुकसान उन्होंने खुद कर लिया। अब देखोगा, अब बीजेपी में गया है ना, अब मुझे नहीं लगता कि अपनी सीट बचा पाए कि ना। ये तो आने वाले समय में पता है, वैसे मुश्किल थोड़ा टफ है उसका भी ऐसे पहले। और मैं ट्रेन में कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग नहीं रहा कि किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी, हो सकता है कि खिचड़ी बन जाए, हंग असेंबली वाला माहौल बन जाए, गुंजाइश है क्या इसकी?
देखो हो सकता है, पर जो पब्लिक है ना उसको ये समझना चाहिए कि किसी भी एक पार्टी को बहुमत देना चाहिए। ABCD जो भी है ना, किसी को एक को जरूर देना चाहिए। अगर नहीं होगा ना, गवर्नर राज हो जाएगा, गवर्नर ऑटोमेटिक BJP राज हो गया, ठीक है ना। 2.5 साल तो आपने उनके स्कंजे में कस गए, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगी, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है ना। तो कोशिश यही होनी चाहिए भी एक पार्टी को बहुमत देना चाहिए, तो वही अपना राज करे पंजाब में, तो बढ़िया रहेगा। आपकी उम्मीद है कांग्रेस से? बिल्कुल डेफिनेटली है। देखो हर क्यों चन्नी साहब या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसके नाम पे? क्या आप कांग्रेस को किसके नाम पे, राहुल गांधी के नाम पे, प्रियंका गांधी के नाम पे, सोनिया गांधी के नाम पे भरोसा कर रहे हैं, या चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पे भरोसा? देखो, तो हम अपने खुद के जो अपनी स्टेट का उसके के नाम पे करेंगे ना, वो तो सेंटर के है ना, वो इसका हम अपने जो लोकल आदमी, लोकल को। मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, लोकल चीजों को बढ़ावा दीजिए। मोदी जी का कहने करने कथनी में करने में बहुत फर्क होता है, उसकी बात को वो तो ऐसे ही है। देखो कल वो आए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, ये कोई बात थोड़ा है। जब उनको वहाँ 2-20 मिनट रुकना पड़ सके तो वो जगह कि चले मेरी जान को खतरा है, ये कोई बात थोड़ा है। उन्होंने फिर रैली में ये भी बोला कि अगर जब आपका जो आइलैंड करके आया तो उनको जाने दो। उन्होंने बोला कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था ना, तो मेरे को जाना था हिमाचल में रैली करने, और चंडीगढ़ में मैं उतरा, और जब राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी थे, उस समय मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो मेरा हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ने दिया था इन लोगों ने। तो फिर वो फिर उसके वो टिट फॉर टाइट कर रहा है, वो जो बदले का बदला ही रह रहा है, ये थोड़ा बात है, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ा है। पहले तुम्हारी बारी थी, अब मेरी बारी नहीं है। तो वो तो फिर ऐसे चलता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा। वो ऐसे जो पॉलिटिशियन है वो सेंटर उसको वो जो लीडर है अपना PM साहब, वो वर्ल्ड में फेमस है। ये तो स्टेट की बात है। वो जो अगर वो ऐसी बात है कि वर्ल्ड में ये बातें जाएंगी, तो फिर जो बाहर बैठे अपने पंजाबी और प्रवासी आदमी है वो क्या उनको चिंता है इस बात की कि दुनिया क्या कहेगी? वो समझता कि मैंने उतना ही नहीं है, मैं तो परमानेंट ही हो गया। अब देखो अब नेट पे देख रहे थे कि उन्होंने जो BJP की अपना और सपा की वोट है BJP की जा रही है। अब देखो खोल के EVM का बटन दबाओ, कोई निकलेगा कुछ और। कमल का फूल निकल रहा है। तो ऐसे ही तो ऐसे अगर यहाँ कर दिया आपके चुनाव में, EVM सेट कर दी, फिर आप कैसे चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? जो फिर देखो, फिर जो अगर कर दिया बदमाशी चलेगी, फिर तो जो एक कदम हो गया, जो बेल्ट बॉक्स में बंद हो गया, वो तो कोई फैसला लेगा, फिर हमें मंजूर करना पड़ेगा ना। तो फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई उधर से सब सेटिंग करके लाए हुए हैं और फिर हो गया बिहार वाला काम हो जाएगा? फिर वो सेटिंग करके लाए वो, तो फिर बाद में आप कोर्ट में केस डालते रहो जब तक 5 साल निकल जाएंगे, दोबारा चुनाव का फिर मौका आ जाएगा। दोबारा चुनाव का मौका हो जाएगा। एंडलेस जॉब है। वैसे EVM आपकी कांग्रेस ही लेके आई थी, EVM को आपकी कांग्रेस ही लेके आई थी। चलो, मैं भी वो कांग्रेस लेके आई, वो बेनिफिट है। देखो हर चीज का ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। आपने उसे अपने हिसाब से मोड़ लिया तो आपका हो गया, ये वो तो बेटरमेंट के लिए भी। अब इसका क्विक डिसीजन हो, जल्दी फैसला जल्दी है, सबका ठीक हो। पर हम पंजाबी लोग हैं, जहाँ इंडियन जो वैसे भी जुगाड़ बना के तेज है ना। जुगाड़ का मामला है। आप यही रहते हैं, क्या नाम है आपका? अब कीरत सिंह। अब कीरत साहब, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है, आप सुन रहे हैं, नौजवान है, तो नौजवान क्या सोच रहा है पंजाब का, ये बताइए। नौजवान बढ़िया देख रहे हैं, अभी तो तमाशा देख रहे हैं। तमाशा देख रहे हैं? तमाशा देख के मजा आ रहा है? एंटरटेनमेंट चलता रहता है। ये तो आपने सटायर कर दिया, व्यंग कर दिया राजनीति। एंटरटेनमेंट ही है, कोई इशू के बेस पे बात थोड़ी करता है। अगर कोई अपना काम गिनाता है तो दूसरा उसके ऊपर तवा लगाने लग जाता है, ये तो कुछ और है, ये तो कुछ और, ये तो कुछ और है। तो आपके दिल में क्या है? मैं तो अगर अपने मन की बोलूँ तो मैं चन्नी को वोट करूँगा। क्यों? एक तो कम्युनिटी फैक्टर हो जाता है, जो अभी उभर के आ रहा है, अपराइज है उसमें। तो जो कम्युनिटी वाले लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी फील कर रहे हैं चन्नी के पास। पहली बार मुख्यमंत्री मिला है उनकी कम्युनिटी से, तो उनको फील हो रहा है कि चलो कुछ अच्छी बात हुई है। हाँ, ये भी बात है। और ऊपर से वो उसकी क्रेडेंशियल्स देखिए आप, ही इज़ क्वालिफाइड, ही इज़ वर्किंग, ही इज़ हम्बल। कोई मुख्यमंत्री आज तक हिंदुस्तान का किसी प्रोटेस्टर के को मिला बाहर निकल के गाड़ी से? नहीं ना मिलता। अगर अगला मिलता है जाके, असेसेबल है, आप पहुंच सकते हैं उन तक, पहुंच सकते हैं। और ये भी नहीं है कि उसने सिर्फ लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही फैला दिया, सबके बिल माफ़ कर दिए। जो पुराने एरियर थे, एक लकीर फेर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कि ये इस कम्युनिटी का है, इसकी मैंने वोट लेनी नो। सबके पुराने एरिया ख़त्म कर दिए, सबके बिल कम आए। मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भी शॉप करता हूँ अपनी,
तो मेरा ये 1 महीने का 2000 रुपये कम बिल आया इस बार पिछली बार। लेकिन जैसे बसपा अध्यक्ष मायावती का कहना है, अभी पंजाब में रैली की उन्होंने, कि ये तो बनाने वाले थे नहीं कांग्रेस वाले, ये तो दलितों के हितैषी थे नहीं, तो वो गिनवाती हैं कि बाबा साहब के उस पर इनको जो है सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। वो उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और काम भी गिनवाते हैं। प्राइवेटाइजेशन आप देखेंगे तो सारा कांग्रेस का है, जिससे आरक्षण खत्म हुआ, कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ और फिर बीजेपी ने उसको आगे बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिलके एक दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारा दलित जो सीएम हमने बनाया इसी को हम कैरी करेंगे। तो ऐसे वोट जो है वो बट नहीं जाएंगे कम्युनिटी के। देखिए, एक पपेट डिप्टी सीएम से बेटर है कि एक फुल फ्लेज सीएम मिल जाए। ठीक है, तो अपन को मुख्यमंत्री मांगता है, मुख्यमंत्री मांगता है। डिप्टी सीएम तो क्या है, वो किसी को भी उठा के लगा देंगे। 10वीं पास वाला डिप्टी सीएम लगा दिया, ये देखो जी दलित डिप्टी सीएम लगा दिया। उसके क्रेडेंशियल क्या है, वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? नेशनल लेवल पे अगर रिप्रेजेंट करना हो दलितों को, ऐसा बंदे तो क्या करेगा रिप्रेजेंट? लेकिन अगर बसपा और अकाली दल का गठबंधन नहीं हुआ होता तो क्या कांग्रेस बनाती, दलित सीएम बनाती? ये तो सीएम भी कोइंसिडेंस से निकला है, ये कांग्रेस ने नहीं बनाया। वो तो ऐसी सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि टसल फंस गई, तो टसल के बीच में से ये निकला है। और आप पीछे नहीं हट सकते। आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जो कम्युनिटी का एक तरफ से रिस्पांस मिला ना पूरे पंजाब में से, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। 38% वोट है ऐसी कम्युनिटी की, 32% तो पॉपुलेशन है। वोट बैंक 38 से 40% है, जो 60 लाख बन जाता है। और बाकी अगर कम्युनिटी की बात करें, जट सिख की अगर बात करें, तो कैप्टन है, बादल परिवार है, वो लोग क्या कांग्रेस पर भरोसा करेंगे? जी, वो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक जो ब्लॉक बनता है उसमें जो भी कम्युनिटी जिस कम्युनिटी लीडर के पीछे चलती है उसके अपने खुद के इंटरेस्ट है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जो ऐसी कम्युनिटीज है वो इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। वो खुद का है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस वाला इंटरेस्ट है, मोटिवेशनल है कि मुख्यमंत्री बन गया हमारा, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बार जो है आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी या फिर कुछ फंस सकता है मामला? जो मुझे लगता है अभी बहुमत तक पहुंच जाएगी कांग्रेस, जो मुझे लगता है। क्योंकि अगर कांग्रेस इतनी स्ट्रांग ना होती तो ये इतनी हाइप ना क्रिएट करते हैं आम आदमी पार्टी वाले और अकाली दल और बीजेपी मिलके। देखो, रेड चन्नी के भतीजे पर हुई ईडी की, और सभी पार्टियां को एक ही बात आ रही है, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, अकाली दल को, कि ये चन्नी के पैसे हैं। सभी का एजेंडा एक। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लीजिए, पैसे मिल गए तो। वही बोल रहा ना, सभी का एजेंडा एक कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल, इसका मतलब सभी मिले हुए हैं। जैसे केजरीवाल जी बोल रहे सब मिले हुए हैं जी, मिले हुए हैं जी। तो इस बार तो चन्नी के अगेंस्ट सब मिले हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग चेहरा उभर के आया, और बियॉन्ड द कम्युनिटी स्पेक्ट्रम ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, नॉट जस्ट एससी कम्युनिटीज, इवन पीपल हु हैव प्रोग्रेसिव अप्रोच, दे आर सपोर्टिंग हिम। So you believe that they will get majority? I consider so. That's your opinion. And आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम जी हंसराज सब्रवाल। हंसराज जी, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई कम्युनिटी अभी जो है ना वो फील कर रही है कि हमारा मुख्यमंत्री बन गया। तो कैसा भाव है आपके यहाँ की जनता के मन में चन्नी साहब को लेके? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया काम किया है। थोड़े समय में इतना काम कर दिया कि कोई सारी जिंदगी नहीं कर सकता। कितने सीएम आए हैं, कितने आकर चले गए हैं, इतना काम कम समय में नहीं किया। और जितना उन्होंने किया है बहुत बड़ा किया है, बहुत बढ़िया किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या किया, जरा बताइए कुछ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बिजली के बिल माफ़ किए, उसके बाद जो सफाई जो है अपने सबका किया, सारे को उन्होंने एक परिवार की तरह रखा है। एक परिवार है ना, एक परिवार की तरह रखा है। और हम लोग आज के नहीं हैं कांग्रेस के, हम 1950 के हैं, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। 1950 से आप कांग्रेस पे वोट दे रहे हैं? जी हाँ, हमारे माता पिता भी 1950 के थे, हम भी उनके बाद हम हैं। हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें इतना अच्छा सीएम मिला है, हम बता नहीं सकते। लेकिन गुस्सा नहीं होते कि भाई 111 दिन इस आदमी को काम करने को मिला, पहले क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस वालों पे नाराज नहीं होते? नहीं, क्योंकि जब उनके पास जो था उन्होंने दिया,
अब जो उनके पास आया है वो ही देंगे ना। उनको कुछ अच्छा लगा, कुछ विचारधारा अच्छा लगी, उनके काम अच्छे लगे, तभी तो उन्होंने वो लेकर आए हैं। आज से पहले कोई बना है? 1950 से लेकर आज तक कोई नहीं बना। लेकिन 1950 से बहुत बार कांग्रेस रही यहाँ, नहीं बनाई उन्होंने ना। नहीं बनाया, क्यों नहीं बना? आप भी तो देख सकते हैं ना क्यों नहीं बना। क्योंकि कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ता थी। अनपढ़ता के बीच जो नहीं बना सकते थे। क्यों, दलितों में तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं, चाहते तो वो बना सकते थे। आपके यहाँ से तो बहुत अच्छे अच्छे विधायक हैं समुदाय के। थे, लेकिन उस वो यूनिटी नहीं थी। वो परीक्षा तो थी लेकिन आने नहीं देते थे। जब आने नहीं देते तो कौन आएगा, कौन लाएगा? आपको कोई आगे आने नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? पढ़े लिखे थे ना, परीक्षा थी, ग्रेजुएट थे, लेकिन उनको आने का समय नहीं मिला। जब आने नहीं दिया, कई पार्टियों ने आने नहीं दिया, टांगे खींचते थे। ये लोग हमारे ऊपर क्यों बैठ गए? परीक्षा कर गई इन्होंने, ये लोग पढ़ लिख गए तो हमारे ऊपर बैठ जाएंगे। अब लोग जो पीछे अनपढ़ता थी ना, अब लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे में गिनती आ रही है दलितों की। पहले भी थे लेकिन इतने नहीं थे, चंद लोग थे। मौके का सवाल है साहब, मौका दे दिया होता तो बन गया होता। वो ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना अकाली दल ने दिया। जितने पार्टी उठी है ना, किसी ने नहीं दिया। और अब काम चलेगा नहीं दलितों के बिना, तो अब बनाओ मुख्यमंत्री, वोट लेने हैं। वोट भी लेने हैं और गांव की जो इनकी जनसंख्या ना आगे आएगी। जो जनसंख्या दलितों की, यहाँ प्रेरणा मिलेगी इनको। अनपढ़ता खत्म होगी, अनपढ़ता खत्म हो गई है। आपको अच्छे लगते हैं चलिए। 95% अनपढ़ता खत्म हो गई है, 5% है। 5% बची है आपके यहाँ अभी है। अच्छा, वो चन्नी जी दूर करेंगे। जी हाँ। अच्छा। हमें इतनी खुशी है कि हमारे परिवार का एक हिस्सा ऊपर उठा है। हम उनको ही लाइक करते हैं और सारी जिंदगी करते रहेंगे। हमारे बच्चे भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन है, इधर ही उनको नौकरी नहीं मिली। जिनका भी राज जहां आया ना, किसने नौकरी नहीं दी। उन्होंने हार कर वहां नौकरी की, दिल्ली में एयरपोर्ट पे। वहां से सीधा कनाडा गई है। आपके अपनी यहाँ की सरकारें नहीं नौकरी दे पाई? नहीं। तो रोजगार मुद्दा है आपके लिए यहाँ पे? दे नहीं पाई। नौकरियां अब बंद हुई हैं, अब बंद हुई हैं अभी, जब से ये सरकार आई है ऊपर। कौन सी सरकार? बीजेपी की सरकार आने के बाद नौकरियां घट गई? हाँ, नौकरियां ही नहीं है। नौकरियां कहाँ हैं? अभी मेरा बेटा 10वीं में है, अगर उसको पढ़ लेके जाएगा, +2 कर लेगा, क्या उसको सरकार नौकरी देगी? देगी। क्या कह रहे हैं आप पर? 2014 में से जब इनकी सरकार आई ना एनडीए की, तो यूपीएससी एक आर्टिकल आया था कि यूपीएससी की जो पोस्ट होती थी वो 60% कम फिल हो रही हैं, ऐड ही नहीं आ रही। तो धीरे धीरे वो पोस्ट हैं वो उनको ख़त्म कर रहे जा रहे हैं, या फिर जो बैकलॉग की जितनी भी जॉब्स बची थी वो ख़त्म कर दी और वैकेंसीज भी कम हुई। ये बात तो फैक्ट कम हो गई। आईएएस की जब मैं पेपर देता था 2012-13 में, तो 1200-1400 पोस्ट आ रही थी 2010 के। अभी 800, 850 और धीरे धीरे 50-50 पोस्ट कम होती जा रही है। और लेटरल एंट्री भी ले आए हैं। पेपर मत दीजिए, इंटरव्यू मत दीजिए, आइए सीधा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे। अब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे वही बंदा आएगा ना जो इनके ग्रुप में से निकल के होगा। अभी हम में से तो कोई लगाया ही नहीं। क्यों लगाएंगे हम में से? ना तो हम स्वर्ण है ना ब्राह्मण है। पहले 9 भर्तियां हुई और फिर 31 सारे के सारे सवर्णों को बता दिया, उनको जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया। तो भाई देख कि ये यूपीएससी तो फिर मतलब नाम करेगा अभी। तो आपके सामने ही फैक्ट है, और हम ये फैक्ट अब जानते हैं क्योंकि हम इस दौर में से गुजरे भी हैं, पढ़े भी हैं। तो हम तो वही करेंगे भी, हमारी कम्युनिटी को मौका मिला, हम मोटिवेटेड हैं तो हम। लेकिन एक सवाल उठता है कि देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन की पूरी पॉलिसी है, इकोनॉमिक फ्रंट पे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है।
और रिजर्वेशन के लिए कम्युनिटी के लोग खासकर SC ST OBC समुदाय के लोग संघर्ष करते हैं कि आप इसका प्राइवेटाइज कर देंगे तो फिर नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो ये काम दोनों सरकारों में होता है। अब हमारी कम्युनिटीज़ के लोगों को ही चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन में और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की डिमांड करें। एक बार शरद यादव ने ये बात बोली थी, तो धीरे धीरे नीतीश कुमार ने उनको पार्टी में से साइडलाइन कर दिया। मायावती जी ने कभी नहीं बोला ये प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट रिजर्वेशन की 5% ही रख लो, 10% ही रख लो। नहीं, BSP के लिए ये एक मांग है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, ये मांग है उनकी और वो इसको बार बार बोलते भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बोला, बोला है। बाकी जो मुझे पता नहीं सर। ये एक बड़ा मसला रहा है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, तभी आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर पाएंगे, आप सामाजिक विविधता की बात कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप देखेंगे तो फिर एक ही तरह के लोग सब जगह भरे रहेंगे। जी, डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी हिसाब से होगा ना, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेल्थ और स्टेटस और जो भी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेंगी। तो साहब क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर जी, सुखबीर के एक और व्यक्ति है, उनका भी नाम है सुखबीर सिंह बादल। लेकिन पीछे बादल बदल लगा ना, बाकी ठीक है। तो बादल जो है बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे? नहीं, बादल तो अब धूप लग गई है। अभी उजाला आएगा। अच्छा, ऊपर ऊपर चले जाएंगे। चले जाएंगे, छतरी है ना, दिखेगा नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों, देखो दुनिया चाहती है कि कोई अच्छा इंसान आए। ये तो अपनी अपनी थिंकिंग है हर इंसान की, जो सोचता है। लेकिन कोई बोलता है कि मैं आम आदमी को डालूंगा, कोई बोलता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि एक अच्छे इंसान को मौका देना चाहिए। आम आदमी को हम जानते नहीं हैं। आम आदमी की कल की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो आम आदमी में ज्वाइन किया था। वो बोला जो हमारे इलाके से लेडीज़ को टिकट मिली है, उसी की रैली करने के लिए साइकिल पे लोग गए और उसका दरवाज़ा खटकाया और उसकी लड़की बोलती वो खाना खा रहे हैं, आप मिल नहीं पाएंगे। तो वैसे ही आ गए। तो जो उनकी कंपेनिंग साइकिल पे कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगी, तो हम आदमी को कैसे मिलेगी, आम आदमी को? तो आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनेंगे नहीं? जो भी आज बदलाव आया है ना, चाहे दुनिया जो मर्जी कहती है, ये सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से आया है। क्यों? कैप्टन को उतारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो एक ही आदमी है, मुंह का जरूर बड़बोला है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ भी गिननी चाहिए। आदमी के औगन नहीं, उसके गुण गिनने चाहिए। अगर अपने बच्चों का भविष्य सोचना है तो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को वोट डालनी ही पड़ेगी। नवजोत सिंह सिद्धू अगर पार्टी बदल लेंगे, आम आदमी पार्टी बार बार कहती आ जाइए, चले गए तो क्या कीजिएगा? कोई भी हो, कुछ भी हो, सच्चा इंसान आना चाहिए ऊपर, तभी हमारी सुनवाई हो पाएगी। दूसरी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। कौन सा आदमी है, मेरी बात सुनो, कौन सा आदमी काली है, कौन सा कांग्रेसी है जो बदल के नहीं इधर उधर गया? कोई एक भी बताए? आम आदमी के विधायक कितने आदमी दूसरी पार्टियों में चले गए और पलट के फिर इधर आ गए। उनको कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, आदमी। आपके लिए पार्टी नहीं, आदमी जरूरी है। मेरे लिए सिर्फ आदमी जरूरी है। आदमी सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई सिद्धू का या किसी का बात करता हूँ, लेकिन अच्छे इंसान की बात करता हूँ कि जो अच्छा आदमी है, उसने पब्लिक के लिए किया है ना। और हमारे इलाके के जो काउंसलर हैं सरदार शैलेंद्र सिंह जी शैली, उन्होंने देखो, एक परिवार में 5 जी होते हैं, सभी खुश नहीं होते हैं, भाई भाई की नहीं बनती है। अगर वो तुम्हारा काम सच्चाई पे 2 आदमी लड़े हैं, सच्चे आदमी की मदद कर देंगे, झूठा बोलेगा यार इसने मेरी नहीं की, मैं इसकी मुखालफत करूंगा। एक आदमी ठीक हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो इसलिए हर एक के लिए हर कोई अच्छा आदमी होता, हर एक के लिए अच्छा कोई बुरा नहीं होता। सभी के लिए सभी 100 से 100 आदमी को कोई खुश नहीं कर पाएगा। ये बात तो है, कैसे खुश करेंगे? हमारे काउंसलर साहब ने जो इन 25 पार्कों के लिए किया, जहाँ इलाके के लिए कहा, मेरे को मैंने पिछली इलेक्शन में उनको वोट नहीं डाला, मैं यकीन से बोलता, मैं उनके खिलाफ था। लेकिन फिर भी वो उन्होंने मेरे को आधी रात को भी आवाज़ दिया था, मैं तभी उसी वक्त आ जाते हैं। क्यों? फिर मैं उसको कैसे माड़ा बोलूँगा? जो आदमी आपके लिए आधी रात को 2 बजे फ़ोन करो तो आ जाता है, आपका फ़ोन उठाता है, तो फिर बेनिफिट अपने लोकल आदमी का के बाहर वाले का? बाहर वाला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको चाहिए साहब? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਮੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਨ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ लोकल एमएलए भी ਅਸੀਂ यहाँ पे किसान आंदोलन भी एक चुनावी मुद्दा है। दिल्ली में बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह किसान बैठे रहे, बहुत सारे किसानों की मौत भी हुई। अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, केंद्र में हरसिमरत कौर मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। किसानों के मुद्दे पर वो कह रही हैं कि भाई हमने समझौता नहीं किया, हमने जो है इस्तीफा दिया। क्या किसान उसको याद नहीं करेंगे? आपके लोग यहाँ पर उसको याद नहीं करेंगे कि देखो इन्होंने इस्तीफा दिया था, गठबंधन तोड़ दिया? नहीं, किसान तो उनको अकालियों को तो बोल ही चुके हैं ना। किसान तो किसानों ने अकालियों के तो सपोर्ट कर रही नहीं है अभी, वो तो कह रहे हैं ना सपोर्ट करो, क्योंकि उन्होंने हरसिमरत कौर बादल जो एमपी है उसने वोट डाला था उसके लिए भी ये आंदोलन पंजाब में लाना चाहिए। इस्तीफा तो उन्होंने बाद में दिया ना हरसिमरत कौर बादल ने, पहले तो उन्होंने हक में वोट डाला था ना, सेंटर में जो डाला था बिल पास करवाने के बिल पास करवाने के लिए। विरोध कर रहे थे, भाग गए थे, वॉकआउट कर दिया था कि नहीं ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनी नहीं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने वॉकआउट कर दिया और बाद को जो ये सारा ड्रामेबाजी हुई जो भी हुआ भी उन्होंने उसको मतलब समझने की ड्रामा किया, असली में कुछ नहीं था। असली में कुछ नहीं था। वो सभी को मालूम है, सभी जो हमारे यहाँ किसान हैं उनको पता है भी उनको अभी कोई मुंह नहीं लगाएगा, अकालियों को बहुत कम वोट डलेंगे उनको। और उनकी सहयोगी बीजेपी, मोदी जी आते हैं तो आप लोग झंडे दिखाने लगते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे ऊपर हमला होने वाला था, अपने सीएम को जाके थैंक यू कह देना। बिल्कुल बिल्कुल वो भी एक ऐसे ही बल्कि मसला जो चला था पीछे जो हुआ था, वैसे तो वो सेफ ही थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई उन पर कोई आँच तो आई नहीं है। वो तो अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकले, वो तो गाड़ी में बैठे रहे हैं। तो ये तो 15-20 मिनट का जो ड्रामा ही था एक था, वो उन्होंने एक बार कुछ एक तो रैली में उनके कोई था नहीं, खाली कुर्सियां पड़ी थी, जहाँ वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाए, जहाँ उनको रोका गया, जहाँ जैसे भी कोई बात हुई, वो तो एक थोड़ा सा खेल उन्होंने खेला और चले गए। वो अभी तो कल भी तो आए हैं, कल तो कुछ नहीं हुआ। तो मोदी का कोई असर है? दिल्ली से ही आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी रैलियों का, उनके भाषणों का, उनके आने का कुछ पंजाब में असर है? मेरे ख्याल से उनके भाषण बड़े सालों से सुन रहे हैं लोग, बोर हो गया अभी सारे सुन सुन के उसको एक कान से सुनते हैं दूसरी कान से निकाल देते हैं। अभी उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे कानून लाते हैं और थोप देते हैं, मन की बात ही करते हैं भी वो अभी ये तो करना ही है। वो है ना, अपने मन की बात ही किसी करना का होता तो कोई ख्याल नहीं ना है अभी क्या करना है, क्या होना चाहिए, किसको क्या देना है। अनएम्प्लॉयमेंट है इतनी ज़्यादा पूरे देश में है, मैं पूरी पंजाब की नहीं बात कर रहा, मैं पूरे देश में है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत लोगों की नौकरियां गई कोरोना में और बहुत बुरा हाल भी है। लेकिन रोज़गार से ज़्यादा आप देखेंगे तो अभी जैसे यूपी चुनाव भी है, तो यूपी चुनाव में भी हम जाते हैं, हम लोगों से पूछते हैं रोज़ी रोटी रोज़गार कोई मुद्दा है, लेकिन वहाँ बात आती है साहब मंदिर मस्जिद मसला है, हिंदू मुसलमान मसला है, तो डाइवर्ट हो गया। वो थोड़ा सा जैसे धर्म के नाम पर भी वोटें, बल्कि वोटिंग का जो करते हैं वो धर्म के नाम पर, कोई मंदिर का मसला ले लिया, कोई मस्जिद का भी एक नया चल रहा है, वो जो कर्नाटक में हिजाब का चल रहा है अभी। ये सारे मसले तो धर्म के नाम पे लेके वोटें बटोरते हैं जी लोग। तो उठकर कोई बात करनी चाहिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए, जैसे यूथ को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। चलो स्टेट की तो अलग बात है, सेंटर में ऐसे नहीं कोई बल्कि कोई रोजगार मिल रहा है लोगों को। हाँ जी, जिद्दां जी भाई साहब ने कहा ना कि जरा इत्थों पहुंचो, इस पे बोलेंगे तो आवाज़ आएगी, आप इस पे बोलेंगे तो आवाज़ आएगी, आप इधर इधर बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा मेरे दर्शकों को। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਖਲੋਤੇ ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਖੁਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆ,
ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੂਹੇ ਕੀ ਬੰਦ करने उन्होंने। चुनाव लड़ रहा है क्या? हाँ चुनाव लड़ा। कौन सी सीट से? श्री हरगोबिंदपुर। अच्छा, तो देखिए वो कह रहे हैं कि मिल रहे हैं। मैं खुद आप कंपेन करके गए थे उन्होंने भाई साहब नाल लै गए थे। मैं वही कहना हर कैंਡੀਡੇਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। मैं तो उससे गल एग्जाम्पल देती है। मैं यूपी के आजमगढ़ में गया था, तो वहाँ एक महिला से मैं चुनाव पे चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही कि चुनाव 2 चरणों में होता है। एक पहला चरण जिसमें नेता हमारे पास आता है, हमारे चरणों में होता है, और दूसरा हम नेता के चरणों में होते हैं। तो ये मर्जी है, मिले ना मिले जी, तो ये तो देखा सब लोगों ने कि नेता जीतने के बाद किस तरह का रवैया अपनाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वो जो अपना वोट है वो देते हैं। तो हमारी अपील है आपसे कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, एक अच्छी सरकार चुनें जो आपके लिए अच्छा काम कर सके। इस पूरी चर्चा पर, इस डिस्कशन पर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर कोई और जो है वो सत्ता पर काबिज हो सकता है? तो अपनी राय दें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी साथियों।